Hello students. So today we are going to start chapter 4 of physics of 11th class, and the very important part of this chapter is vectors. Vectors topic is not only important only for this chapter, but this is an important aspect for physics as such, because in class 11th as well as in class 12th you are this vectors is going to serve the basis of physics, because you deal everywhere with quantities, and quantities can be of two types, either they are scalars or vectors. So vectors are important because they obey not normal algebra, but they are having special algebra, special laws for their addition, their subtraction, their multiplication, their division. So while starting with vectors, what vectors are? Vectors are simply those quantities which require magnitude as well as डायरेक्शन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन. किसी भी क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो डायरेक्शन भी चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड तो चाहिए डायरेक्शन भी चाहिए, तो आप उसको बोलोगे वेक्टर्स. तो बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं, अगर दो वैल्यूज़ हैं 3 और 5, दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 3 और 5 8. तो ये है स्केलर्स, बिकॉज दे डोंट रिक्वायर डायरेक्शन एट ऑल. आपने 3 और 5 को ऐड कर दिया. बट अगर दो वेक्टर्स हमारे पास होंगे जिनका मैग्नीट्यूड 3 और 5 होगा, उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने होंगे. सो यू आर दिस इज़ नॉट दैट इजी टास्क कि आपने 3 और 5 को ऐड कर दिया और वैल्यू 8 आ गई. तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको समझने से पहले सबसे पहले हम वेक्टर्स को यहाँ डिफाइन करेंगे. क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. बहुत सिंपल सा ये डेफिनेशन तो आप 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. वेक्टर्स डू नॉट ओबे लॉज ऑफ एल्जेब्रा बट स्पेशल वेक्टर एल्जेब्रा. अब वो वेक्टर अलजेब्रा क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो एग्जाम्पल्स कुछ वेक्टर के हैं: वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो गए वेक्टर्स. अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एरो रिप्रेजेंट का एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और आप उसको डिनोट कैसे करोगे, तो एक अल्फ़ाबेट लेते हैं, वो स्मॉल और कैपिटल दोनों भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बनाते हैं. दिस ए एरो विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर. और ये जो लाइन है ये वेक्टर है, इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, एंड दिस एरो हेड विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. So this is the representation of vector. Now we are going to see some definitions regarding vectors. So some special type of vectors are there. When we compare two vectors, so some special type of comparisons are there. तो हम एक एक करके देखेंगे वेक्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं, और वो सारा देखने के बाद फिर हम आएंगे इस वेक्टर के अलजेब्रा पर. तो इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल तब कहे जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो इक्वल वेक्टर्स कहे जाएंगे. टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. जैसे ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, एंड इट इज गिवन दैट द मैग्नीट्यूड, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is equal to the length of this vector or the magnitude of vector b, and then direction is, we can see the right direction is towards positive x-axis. So direction and magnitude both are same, so we can say that a vector is equal to b vector, and both vectors will be termed as equal vectors. Now negative of a vector. So negative of a given vector. So if a vector having equal magnitude of the given vector but having exactly opposite direction. A vector having equal magnitude of a given vector but opposite direction is known as negative of the given vector. If a vector was given like this, a vector direction, it is pointing towards right, and this is the magnitude, and so another vector minus a will be such that the length of this vector will be equal to this, or we can say the magnitude of both vectors are same, but the direction is pointing just opposite to that of a. So this vector will be said to be negative of vector a or minus of a vector. Zero or null vector. Again, this is a very important point. We are going to see this later. So the definition says a vector whose magnitude is 0. बस सीधी सी बात है, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो उसको नल वेक्टर बोलेंगे या जीरो वेक्टर बोलेंगे. और एक्चुअली अब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन भी नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड.
ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए आपको एटलीस्ट एक रे चाहिए ना, और रे चाहिए तभी तो आप रे का एरो हेड देख पाओगे, और वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ज़ीरो होगा, यानी एरो बनी हुई नहीं दिखेगी, तो उसका डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, तो डिफाइंड नहीं होता है। नाउ यूनिट वेक्टर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज यूनिट वेक्टर से हम चलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से, आई जे के जो चीज़ें आती हैं वहाँ से, और एक तरह से वेक्टर अलजेब्रा के कोर में यूनिट वेक्टर को आप रख सके देख सकते हो। यूनिट वेक्टर आप ठीक से समझ लो तो आप वेक्टर अलजेब्रा को काफ़ी आसानी से समझ सकते हो। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। अब बस बात इतनी सी नहीं है, डिफाइन तो कर दिया, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी बात लग रही है, इसमें स्पेशल क्या है? तो हम स्पेशल ये है कि हम अपने वेक्टर अलजेब्रा में इन यूनिट वेक्टर्स के कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके और चीज़ों को आसान बनाएंगे, वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। अगर एक वेक्टर ए है तो उस वेक्टर का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम कैप, एरो हेड, एरो की जगह हम रे की जगह हम बनाते हैं कैप, और इसको बोलते हैं ए कैप, वेयर ए कैप इज़ व्हाट, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इससे क्या हुआ, डिवीजन में यहाँ भी मैग्नीट्यूड है ए का और यहाँ भी मैग्नीट्यूड है ए का, सो द मैग्नीट्यूड विल कैंसिल ईच अदर, सो रिजल्टेंट विल बी 1, and just the direction of this arrow head, this a cap or this unit vector will be towards the direction of vector a. It is a unitless quantity. We can see that ऊपर भी a है नीचे भी a है, तो दोनों की यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। This is simply a unitless quantity. और ये किस काम आता है? तो ये किसी भी वेक्टर, किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के काम आता है। किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के काम आएगा, वो देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते इसके बारे में। को इनिशियल वेक्टर्स, तो इसको भी समझ लेंगे हम। को इनिशियल, नाम बता रहा है, इनिशियल और को है, यानी अगर एक ही पॉइंट से वेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं, वेक्टर्स हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, देन दीज वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। लाइक दिस, ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट इट बी ओ, so a vector is starting from point O and vector B also starts from point O, so A and B vectors will be termed as co-initial vectors. So next is collinear vectors. अब यहाँ पर collinear नाम तो ज़रूर है, collinear simply state that vectors along a same line, लेकिन यहाँ पर ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि इसके साथ साथ एक ही लाइन के अलॉन्ग भी हो सकते हैं और वो पैरेलल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। बात करते हैं अभी वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट अलोंग सेम और पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो देखो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये तीनों सेम डायरेक्शन में हैं, क्योंकि सब राइट वर्ड हैं, ये भी राइट की तरफ, ये भी राइट की तरफ, ये भी राइट की तरफ, पैरेलल हैं लाइन ऑफ एक्शन तीनों वेक्टर्स का। सो दीज विल बी टर्म्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। क्यों? इसको हम मानेंगे कि एक ही लाइन के अलोंग है। कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी, दो लाइंस जब भी होती हैं वो किसी न किसी प्लेन में ही होती हैं। जैसे एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन जब भी हम लेंगे तो ये किसी पर्टिकुलर प्लेन में ही होगा। आप कैसे भी रख लो, कैसे भी रख लो, एक प्लेन रहेगा जिसमें ये दोनों लाइंस लाई करेंगी। कैसे भी घुमा लो तो एक प्लेन हर बार आ जाएगा जिसके अलोंग ये दोनों लाइंस हैं। लेकिन तीसरी लाइन भी अगर आ गई तो ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों, अब ये तीन ऐसे हो गए। सो देयर इज़ नो सिंगल प्लेन इन विच ऑल थ्री लाइंस लाई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों लाइंस एक ही प्लेन में लाई करे, लेकिन स्पेशल केस में हो सकता है कि तीनों अलोंग द सेम प्लेन हों। तीनों ऐसे हो गए, अब एक प्लेन ऐसा है जिसमें ये तीनों लाई कर रही हैं। तो अगर वेक्टर्स ऐसे हैं कि एक ही प्लेन में लाई करे तो हम उनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हमने बनाया हुआ है ए बी सी, ये तीनों जो वेक्टर्स हैं वो ये जो बोर्ड का प्लेन है उसी के अलोंग है, इसी प्लेन में है। अगर कोई वेक्टर ए बी ऐसे होता बोर्ड के अलोंग और सी हो जाता बोर्ड के बाहर, लाइक दिस, बोर्ड से कहीं और जाता हुआ किसी और प्लेन में, सो दोज थ्री वेक्टर्स विल नॉट बी कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना होगा, टू वेक्टर्स
आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर्स, क्योंकि दो लाइन से होकर हमेशा एक प्लेन जाती है। पोजीशन वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है? अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है हमारा, एक्स और वाई ले लेते हैं फॉर सिंप्लीफाई, एक्स वाई। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन ओ, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस और उसका डायरेक्शन, ये लेंथ उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, अगर मैं पैरेलल अलग से बना दूं, सो लाइक दिस वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी पॉइंट का होता है या किसी ऑब्जेक्ट का होता है जो यहाँ पर रखा हुआ है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर अगर आपने रखा है सिस्टम के अंदर, तो उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए ओरिजिन से आपको डायरेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, वो होगा उसका मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में जाना होगा डायरेक्ट पहुंचने के लिए, वो हो गया उसका डायरेक्शन। सो दिस वेक्टर विल बी नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट और ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ गई होगी। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर को यूज़ करते हैं। मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, अभी वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से अब पोजीशन वेक्टर शुरू में ये था, बाद में पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो इन पोजीशन वेक्टर के अलजेब्रा से इनको जोड़कर या सबट्रैक्ट करके, वो देखेंगे कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है। सो पोजीशन वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस वे बिकॉज वी कैन फाइंड द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मैंने बताया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूनिट वेक्टर्स, अब यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम आ रहा है और कोई उसका काम नहीं है। तो वो यूनिट वेक्टर्स अगर स्पेशल केसेस में ले लिए जाएं, या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस के अलॉन्ग या जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यानी आपने डायरेक्शन फिक्स कर दिया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर सिंगल यूनिट लेंथ का कोई वेक्टर है तो उसको हम बोल देंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई सिंगल वन साइज का कोई वेक्टर है तो हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस के है तो अलॉन्ग जेड एक्सिस। इसको हम आई जे के लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला एंड जेड एक्सिस वाला। द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सेस, ऑर्थोगोनल एक्सेस ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई जेड एक्सिस, दे आर रिप्रेजेंटेड एज आई जे के रेस्पेक्टिवली। तो आई जे के देखो, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, वाई एक्सिस में जे है और जेड एक्सिस में के है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, उसमें दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं, बताया मैंने कि स्केलर्स की तरह सिंपली आप वैल्यूज़ ऐड करके वेक्टर का एडिशन नहीं परफॉर्म कर सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्शंस की। दोनों वेक्टर्स को जिनको जोड़ने हैं वो डायरेक्शंस कितना एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं उसका भी रेलेवेंस आ जाएगा। तो वेक्टर अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आप सारे वीडियोस को कंटिन्यू कर लेना सच दैट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू।